Good evening students, this is Satyam Misra and I welcome to all of you on your own YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the next chapter of class 10th English book Footprints Without Feet, and the name of this chapter is A Triumph of Surgery. So in this story you will see the detailed of the summary theme and all the detailed of this what this chapter is suggesting and what the main message of this chapter is. So please watch this video till the end so that you can understand this topic very simply, very easily. In this story I am going to tell you how this chapter is giving you a very moral message. In this story, in one line you can say the message of the writer is excess of anything is bad. Means if you are going to do anything at beyond its level, at excess level, so the result is going to be worse. Same is happening here with that dog whose name is Tricky. There is, in this story you will see there is the mistress Pamphry and who have a dog whose name is Tricky. यहां आप देखेंगे इस स्टोरी में मिसेस पैम्फ्री नाम की एक मिस्ट्रेस है जिनके पास एक डॉगी है जिसका नाम ट्रिकी है, और उन्होंने उसको एक्स्ट्रा पैम्परिंग से, एक्स्ट्रा लव एंड केयर से, एक्स्ट्रा मॉल न्यूट्रिशन देने की वजह से उसके हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ दिया था. एंड व्हाइल लविंग ट्रिकी सो मच, the time has come in the life of Tricky where he was unable to move, where he was unable to walk. Why? Because of the excess eating and excess fooding. Due to that excess love of Mrs. Pamphry, she was giving all the nutrients, all the thing, whatever that Tricky was liking. And one demerit was in that Tricky that he never denied to eat anything. इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जो मिसेस पैम्फ्री हैं उन्होंने अपने ट्रिकी को, जिसको उन्होंने अपने यहाँ रखा हुआ था एज अ पेट, उसको उन्होंने इतना ज्यादा लाड प्यार दिया हुआ था, उसका उन्होंने इतना ज्यादा केयर कर दिया था कि उसको जो भी चीजें पसंद थी वो उसको दिया करती थी. इवन एक बार एक वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने उनको ये सजेस्ट भी किया था कि यू शुड avoid to give sweets and other extra things to Tricky if you want to keep him healthy. उन्होंने कहा था कि अगर तुम ट्रिकी को अच्छा देखना चाहती हो और चाहती हो कि ट्रिकी हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा फूड मटेरियल्स और एक्स्ट्रा स्वीट्स और भी जो एग्स है या जो दूसरी चीजें उसे प्रोवाइड किया जाता है वो एक लिमिट में दिया जाए, एक शॉर्ट मात्रा में दिया जाए, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में अगर ये चीजें उसको प्रोवाइड की जाएंगी तो द डे विल कम व्हेन ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. So the same things happen with Tricky. Once the doctor is telling his own experience ki what happened. When he was going somewhere through the market, suddenly he visited Mrs. Pamphry with her dog in that street there. And there when Mr. Harriet saw that Tricky condition, he became very disturbed. He understood कि now that Mrs. Pamphry is not following that instructions whatever I have given to her regarding that Tricky. जब पहली बार मार्केट प्लेस में मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ देखा तो ट्रिकी के कंडीशन को देखकर यहाँ ये डॉक्टर समझ गए कि ये जो मालकिन है वो ट्रिकी को अपने एक्स्ट्रा लव की वजह से, एक्स्ट्रा केयरिंग की वजह से, एक्स्ट्रा पैम्परिंग की वजह से, एक्सेस प्रेम की वजह से वो उसको उन चीजों में कहीं भी किसी तरह के न्यूट्रिएंट को कम नहीं कर रही है, और एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करने की वजह से ट्रिकी का हेल्थ बहुत बुरा होता जा रहा था. He was imagining कि very soon, very early, he will receive a call from Mrs. Pamphry's side कि now Tricky is not able to do anything. Suddenly it happened within 1-2 days. He received the call from Mrs. Pamphry and she was saying कि on that day
Tricky was not able to stand at all and he was vomiting and he was not eating all that food material whatever he was liking much earlier. ट्रिकी की मालकिन मीन्स उस डॉग की जो मालकिन है उसने उन्होंने मिस्टर हैरियट को फोन किया और उन्होंने ये बताया कि आज ट्रिकी जो है वो वोमिट कर रहा है और वो सारी चीजें ही डिनाई कर रहा है खाने से जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है, जो उसे पहले बहुत ज्यादा पसंद था, आज वो उसे खाने से डिनाई कर रहा है. तो Mr. Harriet understood the whole conditions regarding the health of Tricky. He did not take that matter lightly, so he made that matter serious and he told Mrs. Pamphry that now there is only one option, there is only one treatment for Tricky, that you have to hospitalize Tricky in my hospital, because if he will be in my observation then the health of Tricky can improve and I can save him. Otherwise, there is no other option. So, why Mr. Harriet told such thing? Because he was knowing very well the affections, the love and extra care of that lady towards Tricky. He was knowing that if I am going to allow treatment from home only, so she is not going to sort other food materials and other nutrients of that Tricky after all. वो जानते थे कि अगर वो ट्रीटमेंट घर जाकर ही कर देते तो वो उस मैटर को सीरियस नहीं लेती और वो ट्रिकी का हेल्थ और भी ज्यादा बिगड़ जाता. इसलिए डॉक्टर ने इस मामले को सीरियस लिया और उन्होंने कहा कि ओनली वन ऑप्शन इज देयर दैट यू हैव टू हॉस्पिटलाइज दिस ट्रिकी इन द हॉस्पिटल, अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू सेव हिम. फिर फाइनली डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि जब वो खुद ही मिसेस पैम्फ्री के घर गए अपनी कार से ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल लाने के लिए, और when he reached to the house of Mrs. Pamphry, then he is explaining his experience ki what he realized there. When he went there, he saw that all the family members, especially the servants of that houses, were trying to pack all the related, all the concerned things, especially pillows, sheets, cushions, bowls, plate, spoons, whatever they were using to give food to Tricky at home, they were packing that all the thing to give it to me so that I can give it, so that I can follow the whole system of Tricky whatever they are following at home. कहते हैं जब मैं वहां गया तो वो लोग वहां के जो सर्वेंट्स थे, जो फैमिली मेंबर थे, वो ट्रिकी के लिए कॉन्शियस तो थे, लेकिन वो ट्रिकी को दी जाने वाली जो सारी फैसिलिटीज थी घर पे कि किस कसम पे बिठाया जाएगा, कौन सा कोट पहनाया जाएगा, किस प्लेट में खाना दिया जाएगा, कौन सा खाना कब दिया जाएगा और उसका कौन सा पिलो होगा, कौन सा सीट चेंज किया जाएगा, इन सारी चीजों को वो पैक करके डॉक्टर्स के कार में रखते जाते हैं. और जब एक समय के बाद डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये सारी चीज कैरी कर पाना टफ है, तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि एनी हाउ ट्रिकी को लेकर हॉस्पिटल चलो. और वो फिर आनंद फानंद में, जल्दबाजी में उन सारी चीजों को, जो कुछ भी उन्होंने ले लिया था या जो कुछ उन्हें नहीं मिला हुआ था, वो उन्हें वहीं छोड़कर ट्रिकी के साथ हॉस्पिटल की तरफ मूव कर जाते हैं. और वो कहते हैं कि जब वो वहां से निकलते हैं तो उनके घर के लोग, सर्वेंट्स, मिसेस पैम्फ्री ऐसे रो रहे थे जैसे किसी खास व्यक्ति या किसी अपने बच्चे को खो देने से कोई रोता हो, या किसी अपने के चले जाने से जो दुख होता है, उस तरह का पेनफुल सिचुएशन फेस कर रही थी मिसेस पैम्फ्री. इवन शी वॉज थिंकिंग कि शी विल नॉट बी एबल टू लीव विदाउट सीइंग ट्रिकी अ डे, एटलीस्ट सिंगल टाइम इन अ डे. मिसेस पैम्फ्री ये सोचती थी कि अगर वो कम से कम एक बार ट्रिकी को देखेंगी नहीं तो वो जी नहीं पाएंगी. हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि वो उनके बड़े होने के बाद भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं. वो समझते हैं कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और ऐसा करना जो है वो उन बच्चों को कमजोर बनाना है.
ठीक वैसे ही जैसे मिसेस पैम्फ्री ने इतना ज्यादा एक्स्ट्रा उसको केयर कर रखा था कि उसको ना कोई एक्सरसाइज कराती थी, ना उसको खाने पीने में कोई कमी करती थी, और ना ही किसी तरह के काम में उसको इन्वॉल्व करती थी। काम इट मीन्स कहीं आने जाने में भी ट्रिकी की कोई जरूरत नहीं होती थी, वो कार से ही आया जाया करता था। तो ये जो कंडीशंस थे, इसने एक्स्ट्रा केयरिंग ने ट्रिकी के हेल्थ को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया था, और अब वो उस कंडीशन में था कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था। बट जब डॉक्टर उसको अपने हॉस्पिटल में ले गए तो वहां उन्होंने उसके साथ कोई सर्जरी नहीं की, बस उन्होंने उसे बिगिनिंग के 2-3 दिन खाने नहीं दिए, केवल पानी प्रोवाइड कराया गया, वाटर प्रोवाइड कराया गया। और फिर बाद में ये जो ट्रिकी है वो वहां के जो दूसरे डॉग्स हैं और जो दूसरे पेट्स थे जो वहां एडमिट थे, वो उनके साथ मूव करने लगा, वॉक करने लगा। और फिर खाना खाने के टाइम में हॉस्पिटल में जो बाउल रखे जाते थे जिसके थ्रू दूसरे पेट्स भोजन करते थे, ट्रिकी को वहां जाकर अपने हिस्से के खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। बिगिनिंग में चूंकि ही वॉज नॉट इन द हैबिट टू have his food in such way, so he was not doing so, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अगर इस स्ट्रगल में मैं एक एक्टिव मेंबर नहीं बनूंगा तो ये खाने का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे मिलेगा नहीं। और आपको ये पता है, कहावत है कि मरता क्या न करता। अब जब वो भूख से परेशान था, भाई घर में था तो जरूरत के हिसाब से भी और बिना मांगे भी उसको मिल जाया करता था, मगर यहाँ खाने का एक निश्चित टाइम था जिस समय अगर वो चूक जाता, अगर उस समय उसको वो खाना नहीं मिलता तो फिर वो दिन भर भूखा रहता। तो ड्यू टू दैट एक्टिविटीज ऑफ हॉस्पिटल, he was going to be the member part of such eating food, walking somewhere, sometime he is going to jump in the ground where other pets are playing or moving or running। तो इस तरीके से वो समय समय पर खाने के लिए भी स्ट्रगल करता था, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस भी करता था जो डॉक्टर दूसरे पेट्स के साथ करते थे, और एक निश्चित समय के बाद उसके कंडीशंस इंप्रूव्ड होने लगे। और उधर जो है मिसेस पैम्फ्री अपने एक्स्ट्रा केयर की वजह से डॉक्टर को एटलीस्ट सी वॉज कॉलिंग अ डजन टाइम इन अ डे टू नो द कंडीशन ऑफ ट्रिकी। When this doctor informed that Mrs. Pamphry now the condition of Tricky is improving, now he is good, then Mrs. Pamphry thought if he is improving, it means now he need extra nutrient. So she used to send some eggs, at least 1 dozen 2 dozen eggs regularly to the hospital so that it can give to Tricky। फिर उसने क्या किया, जब डॉक्टर ने बता दिया कि अब ट्रिकी की हालत में सुधार है, तो उस मिसेस पैम्फ्री ने कम से कम 1-2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिया। और डॉक्टर ने वो एग्स उसको देने के बजाय अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट के समय उसको खाया करते थे। और बाद में उसके कंडीशंस अच्छे होने लगे तो पैम्फ्री जो है वो वाइन भेजने लगी। तो फिर जो डॉक्टर है वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठ के उस एग के साथ उस वाइन को 1 ग्लास 2 ग्लास वाइन भी अपने ब्रेकफास्ट के समय लेते थे। डॉक्टर कहते हैं कि एक समय मुझे ऐसा लगा कि इस ट्रिकी के ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही थी, ये सारी चीजें हमें खाने के लिए मिल रही थी, वाइन मिल रहा था, तो एक बार मुझे लगा कि इसे अपने यहाँ रेगुलर गेस्ट की तरह रख लिया जाए, रेगुलर पेशेंट की तरह रख लिया जाए। मगर वो जानते थे, ही वॉज नोइंग वेरी वेल कि हाउ कॉन्शियस दैट लेडी फॉर ट्रिकी हेल्थ। इसलिए एक दिन मिस्टर हैरियट ने मिसेस पैम्फ्री को कॉल किया एंड ही टोल्ड मिसेस पैम्फ्री कि नाउ ट्रिकी इज ओके, ही इज टोटली फाइन, नाउ यू कैन कम एंड कलेक्ट इट बैक। उन्होंने उसको फोन करके बताया कि अब ट्रिकी बिल्कुल अच्छा है, और फिर वो वहां आती हैं और वो उसे लेकर अपने साथ जाने लगती हैं। तब वो कहती है कि मिस्टर डॉक्टर, दिस इज ओनली द विक्ट्री, दिस इज ओनली द ट्रिम्फ ऑफ योर सर्जरी।